दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सन भाई। सहस्र वदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अंत जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के लासा। तुम क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदैः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं। यशो मे गतं दिक्षुदान प्रतापाः जगद्वस्तु सर्वं करे यत् प्रसादात्। गुरोरन्ध्रि पद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। પૂજ્ય બાપુ, દરરોજ પત્ર રૂપે ગોપીનું એક અશ્રુ અહીં ખરતું રહ્યું. વિચારતી હતી કે એ વ્યસ્ત વિશ્વંભર ક્યાં કેવી રીતે પત્ર વાંચતો હશે અને ઉત્તર શું આપતો હશે. પણ લ્યો, આવી પહોંચ્યો દ્વારિકાધીશનો આ પત્ર. હે મહાભાગા ગોપીઓ,
પૃથ્વીને ઘેરી વળેલા 7 સમુદ્રશી તમારી વિરહ વેદનાના અશ્રુબિંદુ પહોંચ્યા છે મારી પાસે. તમને ખબર છે, કમલપત્રથી સરકતા સ્ફટિક બિંદુ સમા એ અશ્રુઓ બાપુના નેત્ર કમલથી પણ સરિતા બનીને વયા. પ્રિયા, યુગો વીતી ગયા એકાકીતામાં. ઋણી બન્યો હું મહાગોપી બાપુનો, જેણે તમારું ગીત ગાઈને પુનઃ દ્વારિકામાં વ્રજ સર્જ્યો. હે પ્રેમાંગના, તમારા એક એક પ્રેમ અશ્રુથી બનેલા આ દરિયામાં જ તો કરું છું હું રોજ સ્નાન. જુઓ, દરરોજ તરતા આવતા તમારા અશ્રુથી ગોળેલા કાજળની વિભૂતિ બનાવીને જ તો બન્યો છું હું કાળિયો ઠાકુર. કહો, તમે અને હું ક્યાં જુદા? સખી, ભૂખંડ પર પ્રેમનું અધિષ્ઠાન કરવા તો તમને વ્રજમાં રાખ્યા. મારી સાથે ચાલ્યા હોત તો ધરાતલ પર પ્રેમ સંદેશ કોણ પાઠવત? મીરા આવીને મુજમાં સમાયા, પણ હું તો સમાયો તુજમાં. તમે તો મારા જ અંશી. મારી વિશાળ ચેતનામાંથી જ તો તમારી વિશાળ પ્રેમ ચેતના પ્રગટ થઈ છે. જુઓ, ચારેય યુગમાં મારી સાથે તમારું નામ પ્રવર્તી રહ્યું છે. હે પ્રિય, મારા સગળા કાર્યોની પાછળ તમારા પ્રેમ સિંચનની શક્તિ છે. તેના સ્ત્રોતથી નિત્ય પલ્લવિત નૂતન શક્તિથી જ તો હું આ યુગાવતારી કાર્યો પાર પાડી શક્યો. હે વલ્લભા, મારા જીવનનો વિશુદ્ધ ઉલ્લાસ તો હું તમારી પાસે મૂકીને આવ્યો. તમને ખબર છે, ગોકુળ છોડ્યા પછી એક પણ રાત્રિ હું નિદ્રા નથી કરી શક્યો. કૂગવતા દરિયાના મોજાઓ પથ્થર પર અફળાય અને મને મારા વિનાનો તમારો તડફડાટ અનુભવાય. હું વલકતો અટારીયો ઊભો રહું સવાર સુધી, કે તરતા તરતા અસ્ત્રુની જેમ તમે પણ તરતી તરતી અહીં આવો તો. મુરલી તો મેં સોંપી રાધાને, અને તમે સાચું જ કહ્યું, તમને છેડ્યા વિના કોઈ જ સૂર છેડવાને હું સમર્થ નથી. હે સખી, હું તો સર્વ પ્રકારે લૂંટાઈને જ તો દ્વારિકાધીશ થયો. મારા સારાએ અવતારમાં મારું જીવન તો હતું વ્રજમાં, બાકીની લીલા તો મારું કર્તૃત્વ હતું. હે માધુર્યમયી, તમે ક્યાં જાણી મારી વેદના? આટલી ભવ્યતા વચ્ચે પણ હું એકલો જ હતો. મન મુરલીને માધુર્ય રહ્યું તમારી પાસે. ગૂંટી ગૂંટીને રાતની રાત બસ સંભારણામાં જીવ્યો, જેમાં આપણી વચ્ચે માધ્યમ હતું ખુલ્લું આકાશ, એકમાત્ર આકાશ. પ્રશાંત રાત્રિઓ, કદમનો મહેકાટ, મુરલીનો ગહન નાદ અને તમારી ચેતનાનો ધબકાર. હે પ્રિયા, શરદ પૂર્ણિમાએ વિંધીને ચારણી જેવા બનેલા હૃદયના મૂંઘા ડૂસકા તમને સંભળાયા નહીં? રાજવેશમાં શિરમોર વ્રજનું મોરપીછ દેખાયું નહીં? બંસરીના નાદ વિનાનું જીનું સૂનું સૂનું જીવતર તમને અનુભવાયું નહીં? હે મુગ્ધ સમર્પિતા, સ્ત્રી કેટલી ઉત્સુક થઈ શકે છે, કેટલું અર્પણ કરી શકે છે, અને લાગણીના એક વિલક્ષણ હેલા પર કેટલા ઊંચા છેડા સુધી જઈ શકે છે, એ મેં ફક્ત તમારામાં જ જોયું. રૂકમણીની મુગ્ધતા ખોટી નહોતી, પણ તારા જેટલી મુગ્ધ સમર્પિત સ્ત્રી મેં કોઈ જોઈ નથી, આજ સુધી નથી જોઈ. આમ છેડે પહોંચીને ન ગભરાનારી, ન પડી જનારી તમે, અને મનમાં આણે તો સહન કરવાની કમાલ મર્યાદા સુધી પોતાને તાણનારી પણ તમે જ. યાદ છે મને એ રાત્રિ, તું સાંજથી મારી રાહ જોતી હતી. રાત્રિ ગિરાવા માંડી, તું પાછી ફરી રડતી રડતી. હું રસ્તે મળ્યો અને હંમેશનું તારા પગમાં આળોટવાનું નાટક મેં રચ્યું, અને એક ક્ષણમાં રોષને હડસેલીને મારું ધૂળ ખરડાયેલું મુખ રડતા રડતા તું લૂછવા લાગી. હે પ્રાણપ્રિયા, ત્યારથી મને તારા સોગંધ લાગ્યા.
હવે ઉછળતા દરિયામાં તારા સોગંદ શોધું છું. રાત્રિ પડે અને મારા મહેલની અટારીએ તારા પ્રેમનો દીવો પ્રગટાવું છું. આ ઈશ્વરી વેદનાના અંધારામાંથી તું ક્યારેક તો આવીશ ને. સમસ્ત જગતને બાજુએ સારીને મને હૃદયે ચાંપીશ ને. આ એક જ ઈચ્છા પાસે મારું સગળું જીવન મૂકું છું. ના હું ઈશ ના પરમેશ, હું તો બની રહ્યો તારો હમેશ. वसुदेव सुतं देवं कंस जाके
निरंतर बस मिटा के द्वैपायन विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया तरवो श्री शुकदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की। बाप गोपी गीत के 15वें श्लोक के गान के विराम के दिन इस पावन धाम द्वारिकापुरी में आप सभी को मेरा प्रणाम। गोस्वामी जी कहते हैं
मेरा गुण गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो, नेत्रों में नीर बहे, ये अवस्था आने पर साधक के जीवन में कोई कामना न रहे, इस स्थिति का अहंकार न आए और दंभ न प्रकट हो, ऐसे के वश में भगवान कहते हैं मैं निरंतर रहता हूँ। अपने बंधन का उपाय बताते हैं कि मुझे यदि बांधना है तो इस स्थिति आवश्यक है। इन दो पंक्ति मानसिकी को भूमिका बना करके हम गोपी गीत का गान करते रहें। इस बार 15वें श्लोक की ये परिक्रमा है। भगवान श्री कृष्ण वन में गए, गोपियां विरह में एक एक त्रुटि को युग के समान समझती रही। शाम को लौटते हैं, इस रूप माधुरी में डूब जाती हैं ये गोपियां, लेकिन फिर ये पलकें उसको परेशान करती हैं, दर्शन में बाधा डालती हैं। ये जो इस 15वें श्लोक का सार, उसकी चर्चा हम कर रहे थे। एक बार उसका गान किया जाए, फिर उसकी आखिरी चर्चा। अटति यद् भवान् निहिताननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यता श्रीमुखं जडौदीक्षता जडबुद्धीक्षता अक्ष्मक्रोधदृशा। कल तक हमें सूत्रात्मक रूप से भगवान श्री कृष्ण की ये घुंघराली लटें जो गोपियों को और प्रभु की आत्मा में लीन होने के लिए प्रेरित करती थी, लेकिन ये पलकें बनाकर विधाता ने मूर्खाई घोषित की है। ये ब्रह्मा जड़ है, ये ब्रह्मा मूर्ख है, ये ब्रह्मा बेवकूफ है। फिर मैं कल का निवेदन दोहराऊं कि एक बड़े बुद्धिमान को ऐसा प्रमाण पत्र केवल निर्दंभ और कृष्ण सेवा सिवा जिसको कोई आश्रय नहीं है, ऐसी प्रेम भूमिका गोपी ही कह सकती। और मुझे लगता है ब्रह्मा इसमें जरा भी नाराज नहीं हुए होंगे। ब्रह्मा ने, बूढ़े बाबा ने गोपियों के प्रेम की सफलता के लिए अपने अनुभवी हृदय से आशीर्वाद दिए होंगे कि आपने मेरे लिए ठीक कहा। जड़ ब्रह्मा ने पलके क्यों बनाई? ब्रह्मा जड़ है। जड़ मानी मूर्ख, जड़ मानी बुद्धिहीन, बेवकूफ। गीता दोहावली रामायण में मूर्ख की कुछ परिभाषाएं हैं, तुलसी जी देते, वहीं से शुरू करें कि जड़ किसको कहो। मुझे 3 आश्रय लेना है जड़ की चर्चा करने में। तुलसी की दोहावली रामायण, महाभारत
और थोड़ा रामचरितमानस। दोहावली में लिखा है, कूप खनत मंदिर जरत, आए धारी बबूर, बवही नवही निज सीर सब, मूर्ख शिरोमणि कूर। तुलसी का है वो जड़ नहीं, मूर्ख का शिरोमणि है, इतने लक्षण जिनमें हो। कूप खनत मंदिर जरत, मंदिर जले तब कुआं खोदे। बहुत पुरानी कहावत है। मंदिर जल रहा है तब उसको बुझाने के लिए कुआं खोदे। दिल का मंदिर जलता हो और उसी समय जो आंख के कुएं खोदे वो जड़ है। आंख के कुएं में जल की व्यवस्था प्रेम हो तो पहले से हो जाती है। ब्रह्मा तो ज्ञानी है ना, उसके पास आंसू की व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको जड़ का। कई विद्वान लोग मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं, आप सबने देखे होंगे, सब तरह से उसकी महिमा बहुत रही। लेकिन योग कोई यदि ठीक से देखें तो एक कमी बहुत से लोगों में दिखाई देती है, और वो समय पर जल की व्यवस्था नहीं कर पाए। कृष्ण प्रेम में जिसके नेत्र भीगे ना, वो विद्वता का क्या मूल्य है। फिर बुढ़ापे में प्यार जगे तो बहुत कूप खनत मंदिर जरत हो जाएगा। गोपियों ने ये व्यक्त मध्य में पाया है। दिल तो बहुत जलता था गोपियों का, लेकिन कुएं में जल पहले से पर्याप्त था। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, राम के प्रेम के बिना किसी की बौद्धिकता सुशोभित नहीं होती। कूप खनत मंदिर जरत, आए धारी बबूर। दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, अटैक होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, पहुंच गए, ऐसा धार करके, ऐसा सोच करके कि आ गए, और आए उसी समय बबूर की वाड़ बनाए, यानी किला बंदी करे। मूर्ख। विकार आने वाले हैं, विकार आएंगे। मन घोषित, मन आगाह कर रहा है कि विकार अभी आएगा, काम आएगा, क्रोध आएगा, लोभ आएगा, और फिर उसी समय तत्क्षण जो व्यवस्था में जुटे तो पूरी व्यवस्था कैसे पाएगी, हो पाएगी? कहीं से विकार घुस जाएगा, उसको जड़ का। बवही नवही निज सीर सब। ईश्वर और सदगुरु को छोड़कर अपने स्वार्थ के कारण सबको सर झुकाए, वो मूर्ख है। ये निष्ठा का यहाँ प्रश्न है। कई लोगों की निष्ठा बिल्कुल व्यभिचारिणी होती है, मैंने इतने जीवन में बहुत देखा है। एक इष्ट और एक सदगुरु के चरणों में झुकने के बाद सम्मान सबका किया जाए, लेकिन निष्ठा भेद न हो। मैं कई लोगों को जानता हूँ, देखता रहता हूँ और दुआ देता रहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये लोग जहाँ निष्ठा हो वहाँ चले जाएं। जाते भी नहीं। जिसकी निष्ठा, मैं निष्ठा का आदमी हूं इसलिए बोलता हूं।
ऐसे लोगों को गोस्वामी ने मूर्ख नहीं कहा, मूर्ख शिरोमणि कहा। वो मूर्खों के शिरोमणि। और आपको पता है, हमारी और आपकी निष्ठा जब डावाडोल होती है तब हमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है। एक बहुत बड़ा पाप इसके पीछे आता है, झूठ। नहीं नहीं नहीं, हमें जानना होता। फिर आप लोग कितने खेल करते हैं, कितनी बातें बनाते हो। गोपी क्यों महान है? गोप तो मैंने एक बार जिक्र किया ही कि गोप मेरी दृष्टि में और कुछ है, लेकिन गोपियों को प्रेम की ध्वजा क्यों कहा? स्थूल रूप में द्वारिकाधीश के शिखर पर ध्वजा चढ़ती है, वो कोई मील का कापड़ होगा। द्वारिका या जामनगर या इधर उधर के शहर का, या तो कहीं से ध्वजा चढ़ाने वाला वो कापड़ किसी दुकान से, क्लोथ मर्चेंट से ले आया होगा। द्वारिका के दर्जी ने उसको सिया होगा और फिर उसकी पूजा हुई होगी आचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ। और फिर जिसको ध्वजा चढ़ाने का अधिकार है वो लोग ध्वजा चढ़ाने के लिए ऊपर जाते हैं और ध्वजा फहर जाती है। एक रोमांच अनुभव होता है सबको, लोग पुलकित होते हैं और ये दृश्य देखने योग्य होता है। लेकिन ये सब स्थूल है। ध्वजा जब चढ़ेगी गोपी की ओढ़नी की ही चढ़ेगी, गोपी की चुनरी की चढ़ेगी। इसमें वस्त्र भले किसी का हो, वृत्ति केवल गोपी की ही होगी। मैं नहीं मानता कि कृष्ण गोपी के वस्त्र के सिवा किसी की ध्वजा कबूल करता, और यदि ऐसा है तो कृष्ण कृष्ण नहीं है, केवल आकर्षण है। केवल आकर्षण है साहब, और केवल आकर्षण का कोई मूल्य नहीं। भव्य भंगार कब हो जाए, चंद घड़ियों का मेहमान होता है। भव्यता, ये ध्वजा भव्य नहीं है, दिव्य है। और दिव्य इसलिए है कि मुझे यदि पूछा जाए, मेरी मनोमयी मूर्ति कोई, मेरी मनोमयी मूर्ति की आवाज यदि सुनी जाए और द्वारका के नेदेवड़े की बात सुनी जाए, तो वो ध्वजा गोपी के वस्त्र की है। और केवल नगद वस्त्र नहीं, कृष्ण कहता होगा कि वस्त्र गोमती में धोए बिना तुमने शरीर पर जो लपेटा हो वो ही ठहरे। क्यों गोपी को प्रेम की ध्वजा? उस गोपी प्रेम की ध्वजा है, ये जो शब्द आया वैष्णवी परंपरा में, उसका अभ्यास होना चाहिए, उसके मूल में जाना चाहिए। और मैं तो यहां जब से आया तब से कह रहा हूं, अपनी कौन माने वो बात भी, और कोई मुझे मनवाना भी नहीं है, कोई नियम तुड़वाना भी नहीं है। कोई कानून हो, कोई संविधान ऐसा हो जो यहाँ का ध्वजारोहण का, तो उसमें परिवर्तन हम नहीं करते, हम तो उसको श्रद्धा से निहारते। कारण द्वारकाधीश के शिखर पर रोज 3 ध्वजा नहीं चढ़नी चाहिए, केवल सुबह में एक ही चढ़नी चाहिए, वो 24 घंटों के बाद उतरनी चाहिए। हाँ, 3 ध्वजा का जो नियम हो, उसके लिए जो सेवा, अर्थ सेवा होती हो, वो एक ध्वजा में 3 गुनी कर दी जाए। ठीक है ना? मैं समझता हूं कि उसके पीछे सेवा भाव होगा। भोजन, दान, दक्षिणा, चढ़ाने वालों को जो प्रसाद दिया, ये प्रसाद, ये किसी को कमाने की बात नहीं, कोई नहीं चाहेगा। मेरे देश का ब्राह्मण कोई कमाने की बात नहीं करेगा, वो तो उनका फर्ज अदा कर रहा है। लेकिन देश काल के अनुसार मनोरथ यदि 3000 का हो कि 5000 का, 15000 कर दो। अरे चढ़ाने वालों को क्यों फर्क पड़ता है, जो चढ़ाना है। लेकिन दाता के शिखर पर किसी गोपी की चुनरी की ध्वजा एक बार चढ़े, ताकि उसको भी थोड़ी तसल्ली हो, उसका तो ख्याल करो।
जो दक्षिणा देनी हो 3 गुना कर दो। जो नियम से जिसी को प्रसाद देना, ये हमारा कर्तव्य है, देना चाहिए। पूजा का क्रम, उसमें जो द्रव्य लगे 3 गुना कर दो। हाँ, और किसी को ध्वजा चढ़ाने वालों को हो कि बापू ये कहाँ आप प्रस्ताव रख रहे, 3 गुना करना, 1 गुने में हो जाता है, अच्छा है, 2 गुना हमारे पास से ले जाओ। हमारे पास से यानी मैं किसी को संकेत करूंगा, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं, संकेत कर दूंगा कि दे दो, लो ले जाओ। ये तो मेरा विचार मात्र है, लेकिन यहाँ को कोई संविधान, कोई नियम इधर उधर करने का मेरा काम नहीं है। लेकिन विचार आया तो विचार तो पेश करूं। अब क्या होता है कि भाई सुबह में ध्वजा चढ़ी तो 1 घंटे में दूसरी आ जाएगी, तो जिसने चढ़ाई उसको तसल्ली भी नहीं होगी ना, फिर शाम को तीसरी चढ़ जाएगी। एक हो तो कितना अच्छा। लेकिन परंपरा सी हो तो उसमें परिवर्तन, वो भी हम हृदय से कबूल करते हैं, इसमें क्या है, जो हो। लेकिन ये तो केवल विचार है। अपने केम लागे तुझे? हैं? सवा 3 ગણું સેવા થવી જોઈએ। ધજા 1 ચढ़े, सेवा 3.25 ગણી। जिसको जिसको सेवा के अधिकारी हैं, सबको हमारा कर्तव्य है उसका सम्मान करना। हाँ, द्रव्य तो 2 कौड़ी है बाप। हाँ, इसको दो और उस समय का आनंद कुछ और है। और ब्राह्मण और द्वारिकाधीश के परिकर, जिसको निज मंदिर में जाने का अधिकार है, ये कोई भिक्षुक नहीं होते हैं, ये वही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ने जो आदर्श जगत को दिया था कि हम तेरे से मांगे नहीं, तुम चाहो तो हमसे मांग लो। ऐसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं साहब। हाँ, ये द्वारिका में जो ब्राह्मण युवानी घूमती मैं देखता हूँ, ये छोटे छोटे मांगिया पहन करके जो मस्त घूमते हैं, हाँ, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं। संस्कृत पढ़ते हैं, हाँ, और मुस्कुराते रहते हैं। वरना संस्कृत पढ़ने वाले मुस्कुराना भूल चुके थे। पूरी काशी अक्कड़ बनकर बैठी है। मुझे जाना है 4 दिसंबर को। ऐसे ही जाएगा हम हर बार। वो पंडित भी हमारे साथ तो सबकी बनती, और मेरे साथ जिसकी न बने इसकी दुनिया में किसी की न बने। ये लिख लेना साहब, ये मैं फांको नहीं करता, लेकिन मेरे साथ जिसकी न बने लिख लो, इसको दुनिया में किसी के साथ नहीं बने। ये लिख लेना, क्योंकि मैं ऐसे जीता हूं, सबको खुश करने के लिए नहीं। हमारो रंग स्वभाव है तो फाटा फरिए छी आनी कृपा थी। बाकी हम गरीब लोग हैं, हमें गामडानो रोटलो मांगीने खाधेला माणसो छे। कौन गुरूर हमारा? गुरूर है तो सदगुरु की कृपा का, कृष्ण प्रेम का, मानस की चौपाई का गुरु। ये न होता तो हम क्या खाक होते? हम हैं मुश्ताक, गालिब साहब कहते, हम हैं मुश्ताक और वो है बेजार। या इलाही माजरा क्या है? या इलाही ये माजरा क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? दिले नादां तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मैं वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वर्ण भेद का पक्षी नहीं हूं। लेकिन यदि ब्राह्मण को आप वर्ण समझते हैं तो भूल है। ब्राह्मण एक विचार है, ब्राह्मण एक आचार है, और इसका मैं पक्षपाती कायम रहा। ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है। 3 मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी मेरा राम कहता है। क्षत्रिय मुझे बहुत प्रिय है। ये वर्ण भेद की बात नहीं,
क्षत्रिय का बेटा। सोमनाथ को याद करने से पहले मुझे हमीर जी गोहिल याद आता है। क्षत्रिय मानी धैर्यवान, सत्य की ध्वजा फहराने वाला। मुझे ऊपर हाथ दे एक दूसरे को लूटने वाला क्षत्रिय नहीं होता, भिखारी होता। ऐसे क्षत्रिय रघुवंश में वर्णन है कि रघुवंशी कैसा था। कालिदास कहते हैं रघुवंशी मानी क्षत्रिय का बच्चा कैसा हो, भले राजा का बेटा हो लेकिन बाल्यावस्था में किसी मुनियों के पैर दबाता हो, एक क्षत्रिय का लक्षण है। बचपन में किसी ऋषि के आश्रम में जैसे राम और लखन वशिष्ठ के, विश्वामित्र के। और देखिए कालिदास कितना न्याय कर रहा है रघुवंश में। और युवानी में क्षत्रिय का बेटा, राजकुमार, प्रिंस, युवराज कैसा हो क्षत्रिय का बेटा? सम्यक रूप में समस्त भोग भोगने वाला हो। छूट दे दी, देखो सम्यक रूप में जिसकी युवानी समस्त भोग का रस लेती हो वो क्षत्रिय है। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, कालिदास कहते हैं वो बूढ़ा हो जाए तब मुनि की वृत्ति में बैठा बैठा हरि भजता हो, ऐसा क्षत्रिय किसको प्रिय न हो। इसी अर्थ में क्षत्रिय, मुझे वैश्य प्रिय है। साबरमती के संत तूने कर दिया। आ पोरबंदर पाणो मारो तो पोरबंदर में पड़े एटलू छेटू छे। हाँ, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। हुआ है कोई वाणिया ऐसा? ऐसा वैश्य जो राष्ट्र का शोषण न करे, राष्ट्र को शोषकों से मुक्त करे, गरीबों का शोषण न करे। कोई भी वैश्य, कोई नात जात की बात नहीं करता। मुझे एक बार किसी ने पूछा, बाबू आप मारवाड़ी भाई बहनों को बहुत जानते, बहुत लोग। राधेश्याम जी एक ठुमका लगा प्यारे, एक ठुमका लगा, एक ठुमका लगा। वगाड़ो वगाड़ो एनी साथे जे वाजिंत्रो वागे वगाड़ो एनी साथे। उसको फॉलो करो। व्यापारी के रूप में कहता हूं, कोई जात पात के बारे में। तो एक भाई ने मुझे रमुज में पूछा, राधेश्याम जी आप शायद थे, बापू आप मारवाड़ी बोली जानते हैं? मैंने कहा मारवाड़ी नहीं जानता, मारवाड़ी को जानता। सत्कर्म करते हैं। राम सुखदास जी बापू की जब कलकत्ते में रामायण का पाठ, अब तो वो एक जगह बैठ गए, 1-1 लाख लोग रामचरितमानस का केवल पारायण करते। ऐसे वैश्य पने को प्रणाम करता हूं, इसको सराहूं मैं। ऐसा वैश्य मुझे अच्छा लगता। वर्ण भेद नहीं है। सत्यनारायण की कथा साधु वाणियों મને ગમે। साधु वाणियों બહુ સારો લાગે છે। शबरी केवट जो सेवा में डूबे हैं, ये उनकी शुद्रता नहीं है, श्रेष्ठता है। विनोबा जी कहते हैं सम्मान जाजरू या तो मलमूत्र के त्याग करने की जगह को बिगाड़े उसका होना चाहिए कि साफ करे उसका होना चाहिए। दलितों का सम्मान हो, दलितों के प्रति आदर हो। कौन शुद्र है यहाँ? हाँ, कोई भूदेव नाराज नहीं होंगे मेरे द्वारिका का। 3.25 गुना सब कर दो सेवा का अमाउंट। एक ध्वजा चढ़ाने में 5,000 का खर्च होता है, 15,000 कर दो। आउ मगज में घूमे, इसीलिए मैंने बोला। लेकिन स्थूल रूप में किसी मील का ये वस्त्र है, स्थूल रूप में किसी क्लोथ मर्चेंट की दुकान से खरीदा हुआ है,
स्थूल रूप में किसी ने उसकी सिलाई की है, स्थूल रूप में कोई यजमान बना है, कोई पूजा करवा रहा है, कोई निमित्त, बाकी चढ़ती तो है गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी वृत्ति, गोपी भाव, गोपी समर्पण, वही ध्वजा है जिसकी निष्ठा कभी बदली नहीं। रोष किया, क्रोध किया, ताने मारे, उलाहने दिए, रूठे, गोपियों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कृष्ण एव गतिर्मम मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। श्रीमन महाप्रभु जी वल्लभाचार्य भगवान जो कहते, उसको वैष्णवों ने पकड़ रखा। निष्ठा व्यभिचारिणी न हो, वरना वो मूर्ख है। बवही नवही निज सीर सब, ईश्वर और सदगुरु को छोड़कर, झूठ बोलकर, वृत्ति भेद से खेल करके इधर उधर भटकाव, उसको दोहावली रामायण में जड़ कहा, मूर्ख शिरोमणि कहा। ए मूर्ख है। अब ऐसे लोगों का दोष भी नहीं, क्योंकि उसको परम नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ये उनका दोष नहीं है। यदि हम भटकते हैं तो दोष नहीं है, हम भटकने के लायक हैं। हम भटकने से सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम उसी के, हमने यही कोर्स किया है, हमने यही कोर्स किया, हमारे बाप दादाओं ने यही कोर्स किया है कि भटको भटको भटको। हमारे एक थे, तो जिसकी कथा करवाए उसमें उसका फोटा लगा दे। ठाकुर साहब मैंने देखा, मैं तो विनोद भी करता, तो बोले है बाबू एवं न हो, नहीं पढ़ा तो सारू लगे। मेरी करवाए तो मेरा फोटा लगा दे, प्रेसिडेंट कराए तो उसका लगा दे, डोंगरे बाबा के हो तो उसकी लगा दे, तुम्हारा हटा दे। फिर से मैंने कहा वाह, क्षमा क्षमा क्षमा। निष्ठा भेद वाले आश्रितों को चाहिए निर्णय कर ले, कहीं किसी जागरूक व्यक्ति को कठोर निर्णय न करना पड़े इससे पहले, क्योंकि जागरूक को चिंता होगी ना कि कब तक भटकते रहेंगे इधर उधर। कथा केवल सुनो ना, कथा में से कुछ चुनो भी, चुनो, वरना मूर्ख है, जड़। तो मूर्ख शिरोमणि कूर, कूर मानी निकम्मे, किसी काम के नहीं ऐसे लोग, निकम्मे कूर। फिर तुलसीदास जी एक और जड़ों की व्याख्या देते हैं दोहावली रामायण। बहुसुत, बहुरुचि, बहुत बचन, बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाई, यह अज्ञान अपार। दोहावली रामायण। बहुसुत, इसका पहले स्थूल अर्थ समझो। बहुसुत मानी जिसके घर बहुत संतान हैं, बेटे हैं, बेटियां, बहुत बेटे हैं, परिवार बड़ा बड़ा, बहुसुत, बहुत बेटे। महर्षि कर्वे को 4 संतान थी, और महर्षि कर्वे के जीवन कथा लिखने वाले वो कर्नाटकी विद्वान में नाम भूल रहा हूँ, पंडित कर्वे, भारत रत्न कर्वे, तो उसने उसका जीवन चरित्र लिखा। तो कुछ प्रकरण के बारे में महर्षि कर्वे को मिलने आया, तो महर्षि कर्वे ने कहा कि आपके कितने संतान हैं लेखक महोदय? तो बोले 8। ओह, आप तो मेरे से दुगुने राष्ट्र सेवक निकले।
ऐसा उसने ताना मार दिया, मुझे 4 है आपको 8 है। बहुसुत, बहुरुचि, जिसको बहुत प्रकार की इच्छाएं हैं, बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं। बहुसुत, बहुरुचि, बहुत वचन, कई प्रकार की बातें करते हैं। इधर ये करेंगे, दूसरी बार दूसरी करेंगे, तीसरी बार तीसरी करेंगे, इनके सामने ये बात करेंगे, उनके सामने ये बात करेंगे। बहुत वचन, यह अज्ञान अपार, ये बड़ी मूर्खता है। मानस पढ़ो, ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है, और स्वयं मानस आपको दुआ देगा। लेकिन मानस कम पढ़ो तो चिंता नहीं मुझे, लेकिन 24 घंटों में कम से कम 5 मिनट तो तुम्हारा खुद का मानस पढ़ो कि तुम कितने प्रकार की बातें करते हो। बहुत वचन, इसका पाठ करें, हम अपने मानस का पाठ करें। असमानस मानस चकचाही, भाई कवि बुद्धि विमल अवगाही। हमारा मानस कितने तरंगों में डूबा है। हमारे एक बहन थी, कड़वी बहन, देवी भगत थी। उसको कहो रो कड़वी बहन, तो रोने लगे। बस चुप। ऐसे इनको तो भोलापन था, इनके हृदय में तो भोलापन ही करा, पण घણા કાટ હોય છે અંદરથી ને આવો ધંધો કરતા હોય છે, वो मूर्ख है। बहुसुत, बहुरुचि, बहुत वचन, बहु आचार व्यवहार, कई प्रकार का दाम्भिक आचार। हम किसी का पानी नहीं पीते, हम किसी के हाथ की नहीं खाते। बाजारी में जलेबी खाता मैं જોયો છે। તારો રસોઈયો જલેબી બનાવતો તો ત્યાં। बहु आचार, अकारण आचार, दाम्भिक आचार। हम किसी को छुए ना, हमें कोई छुए ना। हाँ, किसी का व्रत हो तो उसकी अदब तो सबको रखनी चाहिए, लेकिन इतनी ही परहेज क्यों है? हाँ, हाँ? मरना लगा रहेगा, कुछ जी तो लीजिए। मरना तो लगा रहेगा, थोड़ा जी तो लो। इतनी ही परहेज क्या, थोड़ी सी। फिर कोई ना समझो कि मैं पीने की सलाह दे रहा हूं। हाँ, मैं तो चाय की सलाह देता हूं, ये वो खाली ऑफर करता हूं। बहु प्रकार का व्यवहार, इनको भलो मनाई वो। तुलसी कहे उनका कल्याण बहुत दुर्लभ है, दुष्कर नहीं हो सकता। ये सब जड़ हैं, ये सब मूर्ख। अब ब्रह्मा को उतारो उसमें, कहो हंस पर बैठकर आओ द्वारका में। ये बहुसूत नहीं है। ब्रह्मा पूरी सृष्टि बनाता रहता है, इनका बेटा, इनका बेटा, इनका बेटा, सबका पर दादा बना बैठा है। पर क्या, पर का पर दादा है, बहुसूत है उनके घर में। हम सब उनकी संतान है, ब्रह्मा के बनाई हुई बहुसूत। गोपी ठीक कहती है, जड़ है। बहुरुचि, ब्रह्मा की कितनी कितनी इच्छा। अरे वो नाभि कमल में इधर से उठा उधर गया, इधर से उठा इधर आया, इधर से उठा उधर गया, इधर से उठा उधर आया। जितनी एक पंखुड़िया कहीं मेड़ वगैरह नहीं ब्रह्मा की, 4 मुख। बहुवचन, भले उनके मुख से तो वेद निकले हैं, लेकिन बहुत वचन का ही उसका परिचय है। ये हम लोगों की प्रेरणा, हमारे प्रेरणा के लिए बहुत वचन, बहु आचार व्यवहार। ब्रह्मा का बहुत आचार और व्यवहार। इसलिए रामचरितमानस की ग्राम वधूटी, ग्राम पुरुष ब्रह्मा की कड़ी आलोचना करते हैं, कड़ी से कड़ी आलोचना। राम लखन जानकी वन में जा रहा है और भगवान सबको मिलते हैं, ग्राम्य वधू और ग्राम्य पुरुष को प्रभु विदा देते हैं। और फिर वो परस्पर बोलती हैं, वो संवाद मानस में पढ़िए।
सहित विषाद परस्पर करही देवही दोष। क्या शब्द है? सहित विषाद परस्पर कहीं विधि कर तब उल्टे सब आए। सहित विषाद परस्पर करेगी विधि कर तब उल्टे सब आए। राम लखन जानकी को वन में जाते सब कहने लगे विधि के कर्तव्य सब उल्टे, ये आदमी उल्टा है। निपट निरंकुश निशंकु जहि ससिकीन सरूज कलंकु रूख कल्पतरु सागर खारा ते पठये बन राजकुमार। निपट निरंकुश निठुर निशंकु जैसी सरूज। ब्रह्मा के कर्तव्य सब उल्टे, आदमी उल्टा है। कौन उसको बुद्धिमान कहेगा? बेवकूफ है। फिर दृष्टांत देते हैं, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, कितने कितने शब्द लगाए। ब्रह्मा निपट निरंकुश है, उनका ऊपर किसी का वो बिल्कुल स्वातंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं ब्रह्मा। निपट निरंकुश निठुर निष्ठुर है, बिल्कुल हृदय जैसी जात नहीं उनके सीने में, निष्ठुर है। निपट निरंकुश निठुर निशंकु। निशंकु के दो अर्थ, एक तो उनको शंका नहीं, ऐसा अर्थ निशंकु का नहीं। ब्रह्मा को बहुत चिंता है, बुद्धि जिसको ज्यादा उसकी चिंता ज्यादा। लिख लो, ये लिख लो, लिख लो, जिसकी बुद्धि जितनी ज्यादा उसकी चिंता इतनी ज्यादा। ब्रह्मा तो अहंकार शिव बुद्धि अज, तुलसी कहते हैं ब्रह्मा बुद्धि के देवता है। उसकी चिंता, इतना बड़ा दुनिया बनाई तो चिंता कम होगी उसको? कम होगी। इतनी चिंता कि भगवान शंकर जिसके भाग में लिखा नहीं उनको भी सब देने लगे, तो ब्रह्मा ने अपना रिजाइन पत्र तैयार किया विनय पत्रिका में, गए शंकर भगवान के पास और कहा कि भाई हमारा ये, भगवान को कहा कि राजीनामा ले लो, क्योंकि हम लिखता है कुछ और शंकर कर देता है कुछ, तो मेरे रखने की जरूरत क्या। दफ्तर बिल्कुल अकारण हो गया। बाबरो नाहरो भवानी, विनय पत्रिका में तुलसी जी कहते हैं। बहुत चिंता है उसको। यहां निशंकु का अर्थ है शंका नहीं, ऐसा नहीं, उसको बहुत चिंता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के वन में भेजने में उनको कोई चिंता भी नहीं हुई, बिल्कुल निशंकु। ऐसा आदमी कहीं देखा न सुना। जय ससिकीन सरूज, चंद्रमा को जिसको क्षय का रोगी बनाया और कलंकित बना दिया, ये ब्रह्मा के समान जड़ कौन है? मानस के लोग कहते हैं। रूख कल्प तरु, कल्प वृक्ष को जिसने वृक्ष बनाया, एक झाड़ मात्र बना दिया, ये कोई बुद्धिमता का काम है? रूख कल्पतरु और सागर खारा, ये समुद्र को खारा बनाया। कोई योजना किसी सरकार को नहीं करनी पड़ती है, मीठा होता तो, लेकिन निठुर है, जड़ है आदमी। सागर खारा, समुद्र को खारा बना दिया। बुद्धिमान तो रावण लगता है कि योजना विचारी थी कि समुद्र को मीठा कर दो। ये ब्रह्मा को चोट लगी अहंकार को कि ये मेरा पोता बना देगा तो बूढ़े की इज्जत चली जाएगी, इसलिए मारने की योजना बना दी कि मर जाए। उसने चाह की थी कि समुद्र मीठा बनाओ। रावण ने मनोरथ किया था कि ये मरने के बाद स्वर्ग जाए, इससे मैं सीढ़ी बना दूं स्वर्ग की,
कि आओ लंका में, वाया लंका फ्लाइट जाएगी स्वर्ग। हिंदुस्तान से सीधा नहीं, लंका आओ और यहां से डायरेक्ट फ्लाइट सीधी स्वर्ग। 8-10 दिन घूमो फिर लौट आओ। सीढ़ी बनाना चाहता था ये आदमी। क्या क्या नहीं करना चाहता था। चंद्र का कलंक मिटाना चाहता था ये आदमी। विचार तो बहुत शुभ रहे, पूरे हो न हो। विचार तो शुभ करो, पूरे हो न हो ईश्वर पर छोड़ दो। अपनी इच्छा के अनुकूल हो तो हरि कृपा, अपनी इच्छा के अनुकूल न हो तो हरि इच्छा। ये 2 सूत्र के ट्रैक पर चलो, कभी चिंता ही न हो। रूख कल यति क्षमता न हो, लेकिन अपने कारभार का विस्तार ही करता चले। विदुर नीति में धृतराष्ट्र को कहा, हे भरतर्षभ, ये 1 नंबर का मूढ़ है। बहुत विस्तार मूढ़ता का परिणाम, परिचय है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी व्यापार न बढ़ाए, उद्योग न बढ़ाए, अर्थोपार्जन न करे। वेद ने भी तो छूट दी है, लेकिन अपनी क्षमता देखनी चाहिए कि ये सब बढ़ाने में कहीं हरि भजन तो नहीं छूट जा रहा। बाकी तो बढ़ाना ही चाहिए, अवश्य बढ़ाना चाहिए, वरना विकास रुक जाएगा। लेकिन विकास से पहले अपने विश्राम की सोचो कि ये विकास विश्राम की हत्या तो नहीं कर रहा। मेरा मदन अभी 2 दिन पहले आंख में आंसू लेकर बोल कर गया कि बापू बहुत पैसे बढ़ रहे, लेकिन भीतरी भिगापन छूटा जा रहा है। को करो, मैं कहीं पागल हो जाऊंगा। पैसे की कोई कमी न रही, कथा सुनने में साइकिल तक के पैसे नहीं थे, आपका एक चित्र खरीदने के पैसे नहीं थे। आज मेरे पास भगवत कृपा है, लेकिन सिसक सिसक कर चौपाई पर रोता था। वो मेरी अवस्था बदल रही है, मुझे बचाओ। विश्राम के भोग पर विकास नहीं, और विश्रामी चित्त विकास अच्छा कर पाएगा। अविश्रामी चित्त विकास करेगा तो दूसरों का शोषण करेगा। केवल विकास का शब्दार्थ मत करो, उसकी परिभाषाएं समझो। हम क्या है कि किसी न किसी वस्तु का शब्दार्थ करके टूट पड़ते हैं। परिभाषाएं समझ, अर्थ से परिभाषा उत्तम है, परिभाषा से अनुभव उत्तम है, अनुभव से अनुभव का अभिमान न होना उत्तम दशा। क्योंकि अनुभव का भी गर्व हो जाता है कि हमको अनुभव, तो मरे फिर गिरा। ज्यादातर मैं देखता हूं अर्थ जगत में, भौतिक जगत में, हम जहां रह रहे हैं ऐसे जगत में शब्द का अर्थ लेकर लोग टूट पड़े। लव मानी प्रेम, बस टूट पड़े, लव मानी प्रेम। लेकिन उसकी परिभाषाएं समझो कि लव मानी क्या है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जिसने अंग्रेजी भाषा का पहला शब्दकोश प्रकाशित किया, जिसके कुछ प्रकरण मैंने हिंदी रूपांतरण में पढ़े। एक हिंदी त्रैमासिक निकलता है, उसमें मैंने उसकी कुछ जीवन के छोटे छोटे, जॉनसन उनका नाम है, कहते अंग्रेजी का पहला शब्दकोश उसने डिक्लेयर किया। और बहुत अच्छा काम इस आदमी ने किया कि शब्द के अर्थ लिखने के बदले शब्द की परिभाषाएं लिखी, अर्थ ना लिखा। अब पैरोट है तो वो उसका पोपट नहीं करेगा, तोता नहीं करेगा, शुभ। ये 2 वाक्य में परिभाषा करेगा, ये ज्यादा अच्छा है। मिसाल के तौर पर मैं शायद मैंने आगे भी कभी कहा इस बात, उसने एक शब्द लिया, सब शब्द की परिभाषाएं बड़ी अच्छी परिभाषाएं की। उसने एक शब्द लिया, सिगरेट। तो सिगरेट मानी बीड़ी, सिगरेट मानी ये ऐसा कोई शब्दार्थ नहीं किया। उसने परिभाषा की कि सिगरेट मानी कागज में लिपटी हुई तंबाकू। सिगरेट का अर्थ कर रहा है ये आदमी, कागज में लिपटी हुई। अब सुनिए साहब जॉनसन को कि सिगरेट मानी कागज में लपेटी हुई तंबाकू, तंबाकू के ऊपर कागज लपेटा है, कागज में रखी हुई तंबाकू। लेकिन अब उसके बाद जो ये मारता है परिभाषा में वो ये है, इससे बड़ा
धूम्रपान न करो, इसका ज्यादा कोई उत्तम सूत्र नहीं हो सकता। सिगारेट मानी तंबाकू एक कागज में लपेटी है, इसके एक और धुआं होता है और दूसरी ओर बेवकूफ होता है। ये हो सकता। तंबाकू की परिभाषा बीड़ी की, एक और धुआं होता है तो जलाओ वहां धुआं, और एक और बेवकूफ होता है, पीने वाला बेवकूफ हुआ है। जॉनसन की परिभाषा साहब। ऐसे तो सभी अंग्रेजी शब्द, क्या वारी जाऊं जॉनसन पर। पंडिताई देखनी हो तो केवल हिंदुस्तान को ही नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल खुली खिड़की रखकर विश्व के विद्वानों को भी जब हाथ में आ जाए तो वंदन के साथ पढ़ना चाहिए। किसी ने ठेका नहीं लिया है। हाँ, हिंदुस्तान में चरम बुद्धि है, उसका हमें गौरव है, क्योंकि हिंदुस्तान ने उपनिषद दिए और उपनिषद से आगे आज तक किसी का चिंतन नहीं गया, आज तक, और मुझे लगता है न जाएगा। एवरेस्ट एक ही होता है, इससे ज्यादा कोई विचार नहीं जो उपनिषद में भी है, इससे ज्यादा कोई उपाय। वेद पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है। पुराणों में अंधश्रद्धा होने और फलाकांक्षा का रोग लगने की भीति है, इन दोनों के बीच में उपनिषद है, उसको किसी गुरु को समझकर पढ़ो। वेद दुर्गम है, बहुत मुश्किल है समझना, और पुराणों में आते आते तो हम भी स्वार्थी हो गए कि ये करो तो स्वर्ग मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो सब फला देश की बातें आ गई, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा लगता बीच वाला है। लेकिन विदेशी विद्वानों ने भी कम खोजे नहीं की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। सिगारेट मानी एक और धुआं होता है, दूसरी ओर बेवकूफ़ होता है। बहुत अच्छा। एक आदमी सिगारेट पीता था ना, तो पूरी तो नहीं पी सकते ना, तो समझदार आदमी होता, समझदार खाक। तो देहातों में बीड़ी पीते हैं लोग, तो पूरी चूसने के लिए फिर तो होठ जलेंगे ना, तो शूल लेते हैं, शूल भरावे, शूल पकड़ी पीवे, आखिरी दे आर गुड टू द लास्ट पफ। जाहिरात आती है, आप देखिए एसटीओ में जाहिरात होती है कि ये लास्ट तक ये गुड है, विज्ञापन की महिमा देखो, शूल डालकर पिएंगे। तो एक आदमी कह रहा था ये सिगरेट बनाने वाले सब मूर्ख है, क्यों कि इतनी तो छोड़ देनी ही पड़ती है, तो इतनी जरा लंबी बनाते तो क्या नहीं छोड़नी पड़ती, लंबी बनाए तो भी। एक आदमी को कहता कि जब ट्रेन का अकस्मात होता है तो आगे के 2-3 डिब्बे तो भूखा हो जाता है। मूर्ख, किसी को पता ही नहीं, रेलवे प्रधान को भी ये पता नहीं कि वो आगे वाले डिब्बे पीछे लगा देते। द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, बलिहारी बिहार की। नहीं चौपाई गा रहा हूं, आप क्यों हंसते हो? मैंने चौपाई पहले कोट किए, द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी। बाप, लेकिन कुछ उसका धड़ाका अच्छा भी लगता है। उसने सब जगह खादी लगवा दी, मुझे बहुत अच्छा लगा, सब जगह खादी लगवा दी। अच्छा लगता है। कुल्ला अड़वा दिया, कुल्ला पहुँचाया, स्टेशन में पग ऊपर पग चढ़ा बे। ये इतना, किसी ने कहा ना कि देश में 3 PM है। एक तो बड़े भले भोले बिल्कुल प्रमाणिक, हाँ, हमारे सरदार साहब जो है, जो अभी जिसने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली है PM के, और कोई लोग कहते हैं कि एक कोई और भी है, और ये द्रवंश दशरथ अजीर बिहारी, उसके लिए भी कहते हैं कि वो पब्लिक मिनिस्टर है, PM है, पब्लिक के बीच में चला जाता है। ये इस नाते मुझे ठीक है। कहीं भी जाए, पान है, गाड़ी जाती हो, पान वाले की दुकान है, रोको गाड़ी है, कितना कमाता है, तो लोक संपर्क होना चाहिए।
चुके जा रहे हैं राजनीतिज्ञ लोग, जड़। कैसे भी जो हो उसका, जो सब बातों से सहमत होने की जरूरत भी नहीं, वो भी राजी होंगे कि सब बातों से सहमत न हो, लेकिन जो अच्छी बात है उसको तो सोचो। तो जिस देश में 3 PM हो, कितना अच्छा देश, ऐसा लोग कहते हैं। अपने तो अखबारों में पढ़ते हैं, राजनीति से क्या लेना देना। आपने दिल्ली कहाँ जाना है, चैत्र महीने में जाना है, तब देखा जाएगा। चैत्र नवरात्र की रामकथा इस बार दिल्ली में है। 90% तो है। मैं सब जगह 90% कहता हूँ, 100% कहता ही नहीं। बंद रहे तो बंद रहे, हाँ न करવાનો मूड આવ્યો હોય તો બંધ રહે કે નથી કરવી, લો હાલો નથી રમતા આપણે, હાલો સુઈ જાઓ, નથી રમતા, ઠેકો લઈને થોડું નીકળાય। સાધના કરવી અને સરળ રહેવું, સહજ રહેવું। મેં તો મારા જીવનમાં જો જેટલા મારી પાસે આવે ને એ બધા કાંઈક ને કાંઈક લેવા જ આવે। બાપુ આમ છે ને, બાપુ આમ છે ને, મારે આ તકલીફ છે ને, મારે આમ છે ને, મારું આમ નથી થતું, મારું આમ નથી થતું, મારું કંઈ હરખું હાલતું જ નથી, તું હરખો હાલ। लोग समस्या समस्या समस्या। और शांति से एक बार कम से कम, ये क्यों मेरा दावा नहीं, लेकिन बिल्कुल मानस के तुम्हारे सभी आग्रहों को छोड़कर एक बार कम से कम कथा सुन लो, अपने आप कई ग्रंथियां छूट जाएगी। मैं नहीं छोड़ता, मेरा रामचरित मानस छोड़ रहा। ये ग्रंथ ग्रंथि से मुक्त कर देता है। अब सोचिए। हाँ, इसका एक पक्ष ये भी है कि लोगों की श्रद्धा है कि कहीं कुछ समाधान होना नहीं है, केवल व्यासगादी उपाय है। ये भी तो एक शुभ पक्ष है। सोचो। આ પેન્ટ પહેર્યું છે ને બુસ્કટ પહેર્યો છે વાદળી રંગનો, એ બાળક કોઈનો બાબો છે, રડે છે, મને દેખાય છે, તમે પાછું વળીને જોશો તમને દેખાશે। અને એ જેનો બાબો હોય એના બા બાપુજી લઈ લે, એ સેવા અશ્વિન કરે। પહોંચી ગયો, સ્વયંસેવક છે ભાઈ, જેનો બાબો હોય લઈ જાજો। અત્યારે માઇક મારી પાસે છે ને, એટલે મારે એ ડ્યુટી પૂરી કરવાની। हे हरि। जॉनसन साहब फरमाते, एक छोर पर धुआं होता है, दूसरे छोर पर बेवकूफ होता है। अर्थ नहीं परिभाषा, परिभाषा नहीं अनुभव, अनुभव ही नहीं अनुभव का अभिमान मुक्त चित्त, और अभिमान मुक्त चित्त ही नहीं, इस चित्त पर किसी की कृपा है, उनका निरंतर स्मरण। इससे भी ज़्यादा अच्छा है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि जिसकी कृपा से ये हुआ, ये कृपा में अकेला न खाऊं, बांटू बांटू बांटू। ये स्थिति सबसे तेन त्यक्तेन भुंजिथा। ये सब श्रेणियां हैं, सीढ़ियां हैं जीवन उत्कर्ष। हम केवल अर्थ, विकास का अर्थ पकड़ लिया कि कारखाने, कल वो उसने कहा था ना कि राहत जी ने, हाँ, और कोई जमीन नहीं दिखाई देती हर खेत में। विकास का अर्थ विश्राम आहत न हो, विश्राम को कोई तीर लग जाए। बाकी तो विकास करना ही चाहिए। विकास न करो तो राष्ट्र कैसे चले? हाँ, कोई चाहेगा कि मेरा राष्ट्र कंगाल रहे, इसमें उद्योग न हो, सब चीज हिंदुस्तान में। ये चाइना देखो हरण फाल से जा रहा है। भले हर चीज ऐसी मार्केट में आ रही कि यहाँ बनने वाली बेचे कैसे। साइकिल बनाओ 2000 की तो 1000 में ला कर दे देगा। टेलीफोन निकला है उनका चाइनीज का, देखो, हाँ बिल्कुल, हाँ चले कितना वो राम जाने, लेकिन 1000 में मिलते हैं, 1200 में मिलते हैं, बिल्कुल छोटे। विकास विश्राम को तोड़े ना,
हे धृतराष्ट्र, हे भरतर्षभ, विदुर दादा, विदुर कहते हैं महाभारत में, जो केवल विस्तार में ही डूबा है, विस्तारवादी है। मुझे ये जमीन भी मिल जाए, मुझे ये भूमि भी मिल जाए, मुझे ये भी बना लूं। इसमें समाज की सेवा के लिए जितना जरूरी हो इतना विकास बराबर है। भजन के भोग में विकास नहीं होना चाहिए। तो मदन मुझे बहुत अच्छे सजल, बाबू क्या करूं? मैंने कहा चिंता मत कर भाई, हाँ ये चक्र घूम रहा, फिर आ जाओगा तू, वही तेरा भाव फिर आ जाएगा, चिंता मत कर। लेकिन कमाते चल, शुभ काम करते चल, कहने का अभिप्राय है। विदुर जी कहते हैं अत्यंत कार्य कारोबार जो बढ़ा देता है और चित्त की अवस्था ठीक रहती हो तो खूब बढ़ाओ, अवश्य बढ़ाओ। सवाल है, जरूरी है। कई लोगों को काम मिलेगा, कईयों को मजदूरी मिलेगी, कईयों को ही मिलेगा। और तुम्हारे पास कोई कारखाना हो ना, ये मैं गोपी गीत से जरा जुदा चल रहा हूँ, अब आ गया है तो बोल रहा हूँ, कारखाना हो तो एक काम तो करना, कारखाने में जितने वर्कर्स हो उनको दोपहर का भोजन तो तुम्हारी तरफ से देना। इसको टिफिन लेकर आना पड़े, ये तुम्हारी शेठाई के लिए कलंक है। हाँ, हमारे घर कोई मेहमान आए और टिफिन लेकर आए कि बापू खबर नहीं તમે રોટલો આપો કે ન આપો, એટલે ટિફિન મરવું પડે, સમાધિ લેવી પડે। बाप शेठ वो हैं, श्रेष्ठ वो हैं, उनके आश्रित को कम से कम एक टंक का भोजन मानो ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में मिलना चाहिए। मैंने विदेशों में भी हाकल किए हैं और मेरी कथा को निष्ठा से सुनने वाले ये अमल कर रहे हैं। कितने वो अपने कंपाला में कितने 5-6 हज़ार कर्मचारी। मैंने कहा ये तुम्हारा तरक्की देखकर मैं राजी होता हूँ, लेकिन मेरा हृदय तभी ज़्यादा प्रसन्न होगा कि दोपहर की रोटी उसको दूँ बापू, क्या आज नहीं घड़ी निकाल लूँ दी, ऐसे होना चाहिए। मालिक और तरक्की देगा, ये तो जिसको दो आएगा। વીરડો જેટલો ઉલેચો એટલું નિર્મળ પાણી નીકળે। વીરડાને તમે ઉલેચવાનું બંધ કરી દો તો એમને રહી જાય। ગામડામાં આપણે જોયું છે, ઉલેચેલા વીરડામાં ગળી નાખીને ધોત્યા ધોયા છે। લો ત્યાં સુધીની વાત છે। વીરડો ઉલેચો, હવે એ ગામડામાં સમજાશે। પછી એમાં ઓલી ગળી આવતી ચકલી પર, આ ધોત્યાને વધારે સફેદી વધારે આપવા માટે હવે ગળીનું એક વાસણ હોય તો એમાં આ નાખીએ તો આ રહી જાય। એટલે ઘણા લોકો એ વીરડામાં નાખે, એટલું પાણી આછું થઈ જાય, એમાં ગળી નાખે ને પછી ધોત્યું થઈ અને થાય બગલાના પાંખ જેવા ધોત્યા, સમજ્યા? એવા એ જે ગળીની પડીકી આવતી હતી 10 પૈસામાં, 10 પૈસામાં તો કાંઈ ના કાંઈ ફડકો કરી દેતા, ફડકો આપણે જોયેલું છે બાપ। હા, कहते हैं विदुर जी, जो अपनी क्षमता को सोचे भुना केवल विस्तारवादी है वो मूर्ख है। सर्वत्र विचिकित्सते, हर व्यक्ति में शंका करे वो जड़ है। सर्वत्र संदेह की आंख से ही देखे। आम हशे हैं ये लोग बातों करता था तो शू हशे, ओलो भाई ओला भाई ने मळतो तो हमारे व्यापार से विरुद्ध तो बात नहीं होगी। फला आदमी फला गया था, क्या है ये भाई 8 दिन की छुट्टी पर वहाँ क्यों गया, छुट्टी क्यों ली? हाँ, ये तो दाल भात रोटी खाता था, अब उसने दाल भात के साथ दही क्यों डाला? ले भाई एम तो दाल में लोग मांडवी दाणा नाखे थे, तुम दही में हूँ वांधो छे? ऐसी किताब तो कभी पढ़ता नहीं था, अब तो ये पढ़ने लगा है। अरे क्यों शंका करते हो? ये जड़ आदमी का परिचय, मूर्खों का परिचय है। हर बात में संदेह करो। दृष्टि पर इतना भरोसा मत करो जब तक गुरु की चरण धूलि से दृष्टि दीक्षित न हो। ये दृष्टि क्या से क्या दिखा देती है, बहुत बहुत फरेब में डुबो देती है दृष्टि। हजारों तरह की ये दृष्टियां होती।
हमने जहाँ में देखी किस्म किस्म की नजरें, लेकिन चकोर चांद जैसी एक टगर ढूंढते हैं। किसी मेहरबान की एक नज़र ढूंढते हैं। ये बेकदर है दुनिया, हम किसी की कदर ढूंढते हैं। किसी मेहरबान की एक नज़र ढूंढते हैं। हमने जहाँ में देखी किस्म, बहुत पुरानी अपनी बात है यार। ये पंक्तियाँ कितनी पुरानी, सालों से मैं पहले बोलता था ये सब। हाँ, साहित्य तो तुम्हें जुओ हरसुर भाई। हरसुर भाई यार, मायो भाई एवो जो मारो, आ वखते तुम्हारो लाभ न लेवानो। कोई पण स्थिति में प्रसन्न रही सके साहित्यकार। हाँ, लहर मारे, आनंद मारे, बीजाનું હિત પછી પોતાનો આત્મા લહેરમાં રહેવો જોઈએ। બાકી બીજાને રાજી કરવામાં કોઈ પૂરો પીડ્યો નથી, કોઈ પૂરું ન કરી શકે બીજાને खुश। ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हो, संसार को प्रसन्न करना संभावना ही नहीं। हाँ, संभावना नहीं। आकाश में से फूल तोड़ने जैसी बात है, आकाश कुसुमवत बात है। आमादी कहीं फूल मळे नहीं, जब ईश्वर प्रसन्न हो जाता। निज लाभ तुष्टो, सुखदेव जी निज लाभ तुष्ट है। तो ये जड़ है जो सर्वत्र शंकालु मन रखता है, संदेह मन। और संदेह एक बार अंदर आ जाता है ना, उसको प्रवेश ही मत करने दो। यदि प्रवेश कर गया, पलाठी लगा गया, तो मौत तक छोड़ेगा नहीं। इसलिए संदेह, वहम, मैंने पहले दिन भी शायद दूसरी कहा था कि प्रीत के दौरे में वहम, झूठ एक ग्रंथि है, जिद ग्रंथि है, ये सब गांठे। और दोरा कितना भी बड़ा लंबा, धागा कितना ही लंबा और राधे श्याम, छोटी छोटी ग्रंथि पड़े ना तो भी दिखाई न दे, लेकिन धागा छोटा हुआ ही है, हुआ ही है, हुआ। ग्रंथि भले छोटी सी हो, लेकिन जो उसकी लंबाई थी वो कम हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तीसरी बात, महाभारतकार कहते हैं विस्तारवाद न करे, क्षमता के बिना सर्वत्र शंका न करे। सर्वत्र, हर जगह, बस बस ये ऐसा न करे। और कोई सही मार्ग पर जा रहा है, उसके मार्ग में जो विघ्नकर्ता बने वो मूर्ख है। हम नहीं जा पाते, कोई जा रहा है तो जाने दो। अब देखो, कोई कथा का अच्छा आयोजन कर जाए ना तो उसकी भी लोग ईर्ष्या करने लगते। आने क्यों करी गया, आए क्यों कर गए। हाँ? ये कच्छ वाली ये बहनें कथा कर लेगी। कई लोग मेरे पास आए, ये बहनें कर गई। हाँ, हो गई कथा, और महत्व के स्थान में 15वां श्लोक हो गया। बीज कच्छ का ये विशुद्ध भाव था। वाघेला दर्जी दुबड़ा ज होय, कंदो हमेशा जाडा ज होय, એવું કહે છે લોકો। लगभग હોય છે, दर्जी लगभग दुबड़ा हो। हाँ? इनके बाप दादा का कोई पूर्व पुण्य हो गई, वो निमित्त बन गए। हाँ? हमने कहा किसी का नाम बाम नहीं रहेगा, मैं नाम बोलूंगा इसमें संतुष्ट हो जाना, और मैं बोलूँ वो पर्याप्त है ना। कागज पर नाम रहे, खाक है, मैं नाम बोलूँ वो है। और व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, इससे फिर कौन सम्मान हो सकता है। कर गया काम। सोमनाथ में कथा थी ने तो आम पानी बहु वरसे ने आम रेलो पानी नो जेम मंदिर नी चारे बाजू फरे एम लोग आमती 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 आ बाजू दी मांडवा भराई गया, वच्चे महादेव नु मंदिर। कोई शुभ कर्म करता हो शुभ भाव से, उसमें अपनी बुद्धि बार बार मत डालो, वरना तुम जड़ हो, मूर्ख हो, राजी हो, खुश हो। ईर्षा, जलन, द्वेष, इतनी कथा पछी तो विमान आवવું જોઈએ। मारे ने तमारे कोई न આવ્યું, ક્યાંક ત્રુટી છે। વિમાનમાં નહીં આમ તેડવાનો આવે, પણ એક ઉડાन होनी चाहिए। ईर्षा, द्वेष और अहंकार उड़ान रोक रही है। और मैं बहुत राजी हूं, चाहे भाई लोग हों चाहे बहन लोग हों, हम मेरे देश की, मेरे श्रोताओं की युवानी बहुत ऊपर उठ रही।
वो बाली में हमारा आशीष कथा कर गया, एक लड़का कर गया। ये टीनियो नेवासा वाला कोई दी भेगा नहोता एवा 160 ने भेगा कर्या। शिष्ट साहित्य लोक साहित्यનો પીછો કરે, લોક સાહિત્ય શિષ્ટ સાહિત્યનો પીછો કરે। હું ઊભો ઊભો જોયા કરું। હા, કેવું રૂપાળું દ્રશ્ય હતું। યુવાનોને પસંદ કરીને કથાઓ આપું છું। એ બીજા બધા બડા બુઢાઓ જીવ બાળતા રહેતા હોય, જીવ બાળા હા કેમ થઈ ગયું છે, મારું કથામાં આવવું, ખાવું અને ઊંઘ આવે નહીં। ઓહો લે भगवान तुमने हो वरह ना करे। क्या तुम कहाँ अध्यात्म के पथिक हो? तुम अध्यात्म के पथिक को किसी भी छोटी सी भी किसी की उन्नति हो, इसको देखकर दुआ देनी चाहिए कि ईश्वर उसको और आगे बढ़ाए, और आगे। सोचो तो करो। બળતરાને આમ જ વ્યક્ત કરાય, બીજી રીતે વ્યક્ત ન કરાય, એટલા માટે હું આ બોલું। એ ભલે બોલે નહીં, એટલે આમ જ થતું કે महाभारतकार उसको जड़ कहते हैं, बेवकूफ कहते हैं। कोई तुमसे ज्यादा भजन करे तो ईर्ष्या क्यों करते हो? राजी हो ना। हाँ, इनके पैर छुओ, थोड़ी चेतना तुझ में आ जाए। ईर्ष्या क्यों? कोई ज्यादा रुपया कमाया तो राजी हो ना। लोग कहते हैं कमाता ज्यादा, किसी को देता नहीं, और न दे, लेकिन कमाया है ना। नहीं देगा तो प्रकृति ले लेगी। अस्तित्व तो हिसाब करता है। तू क्यों जजमेंट दे रहा है? तू क्यों जज बन रहा? परमात्मा जज बनकर बैठा है। वो साहब बड़ा न्यायी है। ईशनी कोर्टू छे अनेरी। हाँ, जीवज बाळवा, बस जीवज। इससे बाहर आओ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये सामूहिक प्रयोग में से कोई जागृत हो जाते हैं, इसीलिए कथा है। जीसस क्राइस्ट कहते थे, मैं तो जाल फेंकता हूं, बहुत सी मछलियां पकड़ लेता हूं, लेकिन कई मछलियां अपने तर्कों के दांत से जाल तोड़कर निकल जाती हैं, और कोई भोली भाली मछली मेरी जाल में फंस जाती है, वो परम पद को पा जाती है। सदगुरु क्या करता है? जाल बिछाता है। एक गलत अर्थ में नहीं, अध्यात्म यात्रा के लिए हमारी बुद्धि, हमारी व्यभिचारी निष्ठा जाल काट देती है और फिर पानी में चली जाती है। आप सोचो। तो विदुर नीति में मूर्ख के बहुत से लक्षण बताए, मैं तो केवल इतना ही आपके सामने रखना चाहूँ। जड़ू दीक्षवा श्रीमुखम चिते जड़ दीक्षता पश्मक्रूदृशा जड़ दीक्षता पश्मक्रूदृशा। तो विधाता जड़ है, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जही ससी किन्न सुरूज रूख कल्प तरु सागर खारा, तेई पठिए बन राजकुमारा। ये लोग पैदल चलते हैं तो ब्रह्मा ने वाहन क्यों बनाए? ये लोग कंदमूल फल खाते हैं तो सुधादी आसन क्यों बनाए? ये लोग वलकल पहनते हैं तो ये सब क्यों? ऐसा कहकर ब्रह्मा की कड़ी आलोचना की है। तो आप ब्रह्मा जड़ हैं, क्योंकि हमारे दर्शन में बाधक बनने वाली पलकें बनाई हैं। क्यों? पलकें न बनाते तो आंखें उनको देखती ही रहती, देखती ही रहती, देखती ही रहती। ऐसा कहकर गोपी अपने हृदय के अंतरतम भाव को श्लोक में प्रकट कर रही हैं। संक्षेप में आपके सामने ये 15वां श्लोक गाया गया, कुछ अगल बगल में उसकी चर्चा की गई।
कि गोपियों का ये विशुद्ध भाव, ये प्रेम धर्मी भाव क्या है, इसकी कुछ चर्चा व्यासपीठ ने आपके सामने रखी। एक बार फिर ये श्लोक गा ले। अटति अद्भवा नहि काननम् त्रुटिर्युगायते मां पश्यता कुटीरकुण्तलम् श्रीमुखं च ते जडवीक्षता अश्मक्रुदृशा जडवीक्षता अश्मक्रुदृशा जडवीक्षता अश्मक्रुदृशा। तो ये 15वां श्लोक भगवान द्वारिकाधीश की छाया में हम सब ने गाया और कुछ गान के साथ चर्चा की जो समझ में आई। 16वां श्लोक पक्का नहीं है, लेकिन शायद नैमिषारण्य में अगले शारदीय नवरात्र में हो सकता है, या तो बीच में एक बद्रीनाथ भी करना है तो बद्रीनाथ जो हो। लेकिन अब 3 स्थान है, शुक्रताल, द्वारिकाधीश। अरे क्यों भाई, अब दूसरी बार नहीं आएंगे, अब क्या है, एक ही ध्वजा चढ़ेगी। तो एक बद्रीनाथ और एक नैमिष और एक जहाँ शुक ने ये गान किया है शीक, और फिर आखिर में 19वां फिर घूमते घूमते अपने स्थान में चले जाएंगे। तो इस तरह ये गोपी गीत का गान चला। मजा आई क्या? अब आज तो कहूँ ना मजा आई, नहीं तो कहते तो मजा आवश्य हो, क्या तो आनंद है। आज सबको 1 बजे की ट्रेन से जाना है, इसलिए कई लोगों ने मुझे चिट्ठियां दी हैं कि बापू 11 बजे तो पूरा कर ही देना, क्योंकि कथा से ट्रेन की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, होनी चाहिए, जरूरत स्वाभाविक होनी चाहिए, इसमें कोई मैं आलोचना के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप समय से ट्रेन पहुँच सको, आपकी यात्रा बिहारी ट्रेन में शुभ हो, ऐसी कामना करता हूँ। और हमें भी तो जाना है। प्रभु की कृपा से द्वारिकाधीश के बुलावे पर मनोरथी तो वो ही था, और उसके बुलावे पर निमित्त बन गई शुद्ध भावना, निमित्त बन गई किसी की शुद्ध सेवा, और निमित्त बन गए गाने के लिए, सुनने के लिए हम सब। बाकी तो ये सब पहले से गाया गया होता है, ये तो स्मृति आती है तो दिमाग में घूम, जैसे कोई संगीत का शौकीन आदमी किसी को सुन लेता है ना, 1 महीने के बाद फिर वो ही सुर आएगा। ये अनंत आत्माएं बोली है इस अस्तित्व में, वो आता है, फिर बोलते हैं, गाते हैं, सब निमित्त है इसमें। इसी गोपी गीत के गान को मैं विराम देने की ओर हूँ, तब मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। द्वारिकाधीश के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सबको प्रेम का दान करना। जिसके प्रेम में तू भी रोया है, जिसने द्वारिकाधीश को पत्र लिखे जो यहाँ पढ़े गए गोपी हृदय से, कोई एक उसने लिखा, किसी ने लिखा, वो जो
पत्र पठन हुआ, उसमें जो भाव थे, एक अच्छा उपक्रम हुआ। ये भी एक अच्छा उपक्रम है कि पहले एक एक पत्र किसी का लिखा हुआ परम को संबोधन करके वो पढ़ा गया, फिर कथा शुरू। ये सब नए नए प्रयोग है, सहज है। मुझे भी पता नहीं था, मुझे पूछा कि बापू ऐसा हम रखें, मैंने कहा रखो। बहुत व्यासपीठ बहुत से नए नए प्रयोग सहज कर रही है, यही है नया दौर, यही है। लेकिन अब ये चरा ये चरा मेरे साथ आयु हो आपड़ू आयु। तो बाप प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, भगवत कृपा से ये बिल्कुल निर्हेतु, न कोई हित न कोई हेतु, केवल निर्भेड़ हेत के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए गाया गया है गोपी गीत। विनय रामचरित गोपी गीत के 15वें श्लोक की ये विनय पत्रिका में द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर। विनय पत्रिका दीन की बापू, श्लेषे बापू, यहाँ उनको भी बापू और पेश करने वाला आप सबके वती बापू। विनय पत्रिका दीन की बापू, आपू ही बाँचो। एक बार सुना है भागवत में, तूने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा था, हे भुवन सुंदर, संबोधन करके रुक्मिणी जी ने तुम्हें निमंत्रण दिया था कि आपको इल्जाम लगे, लेकिन मैं देवी का दर्शन करने जाऊं, वहां आकर आप मुझे ले जाओ। और वो पत्र आज भी विट्ठलनाथ के मंदिर में, शायद द्वारिकाधीश के मंदिर में भी उस श्लोकों का गान होता होगा, वहाँ होता है। तो आज हमने भी गोपी गीत के 15वें श्लोक की विनय पत्रिका दीन की बापू आपू ही बाजो। जब तू एकांत में हो तब पढ़ना प्यारे, तारी ध्वजा बजा चढ़ी जाए। फिर जब तुम एकांत में हो तब ये हमारी कुछ बातें हैं, उसको पढ़ना, बस इतना ही। फिर उसका जवाब दो न दो कोई चिंता नहीं, कोई संकेत नहीं चाहिए। हमने तो विनय पेश किया, तूने करने दिया, वो कोई कम कृपा नहीं है, कोई कम कृपा नहीं चाहिए जवाब। हम लिख रहे थे, इससे पहले तेरा जवाब मिल गया था। प्यास लगती है, इससे पहले अस्तित्व पानी की व्यवस्था कर देता है, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए ये विनय पत्रिका ठाकुर को समर्पित 7 दिवसीय शारदीय नवरात्र में ये जो कथा गान चला, उसको यहाँ विराम दूँ। पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ सबके ऊपर द्वारिकाधीश की महत्ती कृपा ज़्यादा से ज़्यादा बरसती रहे, हम उसको पचा पाएँ और पच जाए, इनमें से कुछ बचें तो बांटते चले, बांटते चले, बांटते चले। इन्हीं शुभ भाव के साथ मैं कथा को विराम देने की ओर जा रहा हूँ और हनुमान जी को विदा दूँ इससे पहले। च्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्र जानकी नायकम श्री रामचंद्र जानकी नायकम श्री रामचंद्र। भगवान कोई त्रुटि रह गई हो तो 3 बार हम बोल देते हैं। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।
कथा विसर्जन होत है। सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया वर राम चंद्र की जय। रघुवीर राम चंद्र की पवन सुत हनुमान उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संत भरोसो दृढ़ श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ श्री गिरिराज धरण की द्वारिकाधीश श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी वल्लभाधीश। 1-2 मिनट के लिए हरे रामा रामा एक बात बीच में सुन लो। हाँ, मुझे ये ब्राह्मण देवता हमारे पहले दिन से दबाव डाल रहे हैं कि दशहरा की पागड़ी भगवान की कहीं मंदिर से बाहर नहीं जाती है, पहली बार बाहर आ रही है। ठीक है, ऐसा मुझे कहा गया और आपको पहननी पड़ेगी। મને બીજાની પાઘડી પહેરવી ફાવતી નથી, પણ મારા દ્વારકાધીશની છે એટલે 5 મિનિટ પહેરીશ। પણ એનો અર્થ એમ નથી કે કોઈ બીજી કથામાં પછી મને કહે કે ત્યાં પહેરી હતી એટલે ત્યાં હું ધડ દઈને ના પાડી દઈશ, એટલે કોઈ સાહસ નહીં કરતા। અહીંયા પહેરી લો બાપુ, પહેરવું ને સ્વામીજી? હા, લાવો લાવો લાવો, આવો પછી કીર્તન કરાવું એટલે માથું હળવું રહે। स्वस्ति न पूरुगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऐश्वर्यं यद् प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदां शत्रुहानि परो मोक्ष। बधाने प्राप्त थाओ, बधाने प्राप्त थाओ, बधाने प्राप्त थाओ। द्वारिकाधीश की जय।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का शेर ની અંદર એક વંદના શેરમાં બોલ્યો વ્યાપો કીર્તિ વિશ્વમાં મળો માન અને સન્માન સૌને મળો अमर रहो इतिहास में बापू आपका नाम। खुश रहो। हाँ धन्यवाद। ના રાખું છું થોડી વાર રાખું. અરે મારા બાપ હાથના ઉપર રાખો. હરે રામ 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 હરિ બોલ. हरि बोल. हरे राम 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 सीता राम 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु हनुमान जी महाराज की। भगवान की कृपा से सप्तदिवसीय गोपी गान यहाँ विराम ले रहा है। पुनः एक बार मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ आप सबके लिए दशहरा की बधाई, शरद पूर्णिमा की बधाई, दीपावली की बहुत आगे से आप सबको बधाई, नूतन वर्ष की एडवांस में बधाई बधाई हो। जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। सप्तदिवसीय कथा विराम ले रही है। भाव और शुद्धा के साथ बोलिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती पावन पुराण भागवत निर्मल सुख मुख गलित